السلام علیکم برادرس اینڈ سسٹرس ان اسلام. آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی امپورٹنٹ باتیں لے کے آیا ہوں جو آپ نے یہ سوچ کے ان کو سننا ہے کہ مجھے ان باتوں کو اس سال امپلیمنٹ کرنا ہے اپنی لائف میں. اس سال مجھے ان باتوں کو فالو کرنا ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو کچھ 10 باتیں ایسی ہیں, ان کو آپ نیو ایئر ریزولوشن سمجھ لو, چونکہ آج محرم کا مہینہ ہے اور محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہوتا ہے اور 1443 ہجری ہے. تو these things you should write in your notebook and آپ نے اس کو ایسے ہی کرنا ہے اور اگلے سال تک یہ چیزیں آپ کر چکے ہونے چاہیے. کچھ 10 باتیں ایسی ہیں جو میں آپ کے لیے لایا ہوں, جو آپ کو اس سال کرنے کی ترغیب دیتا ہوں میں, اور ان کو کرنے کا طریقہ بھی بتاتا ہوں کیسے کرنی ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ نماز آپ نے شروع کرنی ہے اس سال. جن لوگوں کو نماز پڑھنے کی کم عادت ہے, آپ میں سے بہت اکثر لوگ ہوں گے جو 2 وقت کی نماز پڑھتے ہوں گے, یو آر ناٹ مسلم. اوکے, 2 وقت کی نماز کہیں حکم میں نہیں ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کبھی کبھی پڑھتے ہوں گے. تو آپ نے سب سے پہلا تو یہی عزم لینا ہے, سب سے پہلے یہی موٹو لینا ہے کہ اس سال سے میں نے 5 وقت کی نماز شروع کرنی ہے. اب کچھ لوگ کہیں گے یار موٹیویشن ہی نہیں ملتا ہے نماز پڑھنے کا. سو اف یو آر اے مسلم, ڈو یو نیڈ اے موٹیویشن؟ میرا آپ سے سوال ہے کہ اگر آپ مسلمان ہو تو آپ کو موٹیویشن کی کب سے ضرورت پڑی نماز پڑھنے کے لیے؟ بھائی مسلمان ہونا ہی یہی ہے. صحابہ کرام کس کو مسلمان سمجھتے تھے؟ جو نماز پڑھتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بندے کے کفر اور اسلام کے بیچ کا فرق نماز ہے. جس نے نماز پڑھی وہ مسلمان, جس نے نماز نہیں پڑھی وہ کافر. اور اگر نہیں پڑھتے ہو تو یہیں پہ سوچو آپ کس کیٹیگری میں آتے ہو. اف یو نیڈ اینی مور موٹیویشن تو مجھے کامنٹ میں لکھ دو کہ کس کس کو موٹیویشن چاہیے نماز پڑھنے کی. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سال آپ نے عزم لینا ہے کہ مجھے 5 وقت کی نماز شروع کرنی ہی کرنی ہے کسی بھی صورت میں. تہجد نہ پڑھو فی الحال, ضروری نہیں ہے کہ پہلے ہی آپ تہجد پڑھنا سٹارٹ ہو جاؤ. اگر کوئی کر رہا ہے تو اٹس ویری گڈ, بہت فضیلت والی نماز ہے. لیکن ایٹ لیسٹ جو فرض نمازیں ہیں ان کو شروع کرو اس سال. یہ عزم لو کہ کیا پتا میں 2 مہینے میں ہی مر جاؤں, کیا پتا میں اگلے مہینے ہی مر جاؤں گا. تو اگر آپ نے نیت لی ہوگی تو اس نیت کا ثواب ملے گا کہ آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے. اور جب نیت کرو گے تو اس کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے گا. اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے کہ اللہ توفیق دے ہمیں نماز پڑھنے کی. تو پہلی تو بات اس سال آپ نے یہی کرنی ہے. اس سال کے سٹارٹنگ سے ہی آپ نے یہ عزم لینا ہے کہ اس سال جو ہے میں نے 5 وقت کی نماز سٹارٹ کرنی ہی کرنی ہے. اس سال یعنی آج ہی سے کرو. اور روز اپنا شام کو دیکھو کہ میں نے نمازیں کتنی چھوڑی اور کتنی پڑھنے کو رہ گئی, اور کتنی میں نے کس وجہ سے نہیں چھوڑی. کیا میں نے اس وجہ سے نہیں چھوڑی کیونکہ مجھے آلس آ رہا تھا, یا میں نے اس وجہ سے نہیں چھوڑی کہ میں مووی دیکھ رہا تھا, یا میں نے اس وجہ سے چھوڑی کہ مجھے کوئی اور کام تھا. تو یہ چیزیں آپ نے فگر آؤٹ کرنی ہے کہ کن کن چیزوں سے آپ کی نماز چھوٹ رہی ہے, اور ان چیزوں کو, ان نیگیٹو چیزوں کو آپ نے اپنی لائف سے باہر نکالنا ہے. پہلی تو یہی ہے آپ کو کہ آپ نے یہ عزم لینا ہے کہ انشاءاللہ سال یہ جو شروع ہوا ہے اس سال مجھے اللہ تعالیٰ توفیق دے کے میں نے 5 وقت کی نمازیں شروع کرنی ہے. نمبر 1. اب نمبر 2 کیا کرنا ہے آپ نے؟ نمبر 2 آپ نے بری عادتوں کو چھوڑنے کی کوشش کرنی ہے. اب بری عادتیں آپ کو پتا ہے, بری عادتوں کے بارے میں مجھے ڈیٹیل میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جو بری عادتیں ہیں, آپ کو نشہ کرنے کی عادت ہے, آپ کو کچھ اور عادت ہے, آپ کی کوئی اور ایسی انٹرنل ہیبٹس ہیں جو آپ کرتے ہو, whether it is backbiting, whether it is masturbation, leave that. آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے. آپ نے گیو اپ کر لینا ہے کہ مجھے بیڈ ہیبٹس اس بار ختم کرنی ہی کرنی ہے. تھرڈ تھنگ ہے قرآن. اب قرآن کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ قرآن کو ترجمے سے پڑھنا سٹارٹ کرنا ہے آپ نے. اس سال یہ عزم لو. آپ لکھ رہے ہو, میں دیکھ رہا ہوں آپ لکھ رہے ہو, لکھو ان چیزوں کو. 3 چیزیں ہو گئی. پہلی نماز پڑھنا سٹارٹ کرنی ہے, دوسری بری عادتیں چھوڑنا سٹارٹ کرنی ہے. ایک ایک کر کے چھوڑو, ٹائم لگتا ہے, ہر ایک چیز میں ٹائم لگتا ہے, ایوری تھنگ ٹیک ٹائم. ایک ایک کر کے چھوڑو, لیکن چھوڑو. اور تیسری چیز آپ نے قرآن پڑھنا سٹارٹ کرنا ہے. whether you listen to the recitation of قاری صاحبان, یا آپ کوئی کتاب پکڑ کے, یا آپ فون سے ہی قرآن کی تفسیر ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھنا سٹارٹ کریں, بٹ پڑھنا سٹارٹ کریں. روز کا ایک آیت کا آپ نے مفہوم پڑھنا ہی پڑھنا ہے اور اس آیت کی تلاوت کرنی. ایک ہی آیت روز کا رکھو, 3 سال لگے 10 سال لگے, لیکن آپ ایٹ لیسٹ قرآن کے اس
मकसद को समझोगे जो कुरान में लिखा गया है। नंबर 4, अल्लाह के जिक्र को आपने अपनी लाइफ में लाना है। जो सुन्नत अज़कार हैं, चाहे तस्बीह फातिमा पढ़ते हैं हम, रोजाना 100 दफा फजर की नमाज पे सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम पढ़ना है, या इस तरह से और बहुत सारे अज़कार हैं जो आपको मालूम होंगे। मुसलमान हैं तो मुसलमानों को पता है कौन से अज़कार कब करने हैं, ठीक है। तो जो अज़कार, अगर आप चाहते हो उस बारे में मैं डिटेल में और वीडियो बनाऊं कौन से अज़कार कब हैं, सिंपल अज़कार जो हम कर सकते हैं डेली की लाइफ में, तो और दुरूद शरीफ भेजा करो। ये 2 चीजें हैं, अल्लाह ताला का जिक्र और दुरूद शरीफ। सिंपली आप सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाहु अकबर से स्टार्ट करो हर नमाज के बाद। जितनी इनकी काउंटिंग रखी गई है शरीयत में उतना पढ़ा करो। सिंपली पहले बेसिक से स्टार्ट करो कि मुझे हर नमाज पे, जो 5 वक्त की मैं नमाजें पढ़ रहा हूँ, हर नमाज के बाद मुझे ये सुन्नत अज़कार पढ़ने हैं। सुभान अल्लाह 33 बार, अल्हम्दुलिल्लाह 33 बार और अल्लाहु अकबर 34 टाइम्स, ठीक है। नंबर 4 तो ये हो गया। नंबर 5 हो गया कि आपने, ये तो हो गया आपके और अल्लाह के बीच के जो मामलात हैं उनको आपने और अपनी जो पर्सनल ग्रोथ है उस पर आपने ध्यान रखना है। 5वां हो गया हेल्प करना स्टार्ट करो। स्टार्ट हेल्पिंग अदर्स, स्टार्ट गिविंग चैरिटी। 10 रुपए की भी औकात है ना आपकी, 10 रुपए भी किसी गरीब को देने की, तो वो देना स्टार्ट करो। 5 रुपए भी देने की औकात है तो वो देना स्टार्ट करो। किसी की हेल्प करने की औकात है आपकी, आपको लगता है कि मैं इस चीज में उसकी हेल्प कर सकता हूं, तो वो चीज स्टार्ट करो, बट स्टार्ट दिस। नेक्स्ट है ईट हेल्दी फूड। ये मैंने एक्चुअली लिस्ट बना के रखी हुई है और उसी से मैं पढ़ के आपको बता रहा हूं, और ये चीजें मैंने लास्ट ईयर स्टार्ट कर चुका हूं। ये चीजें जो मैं आज आपको रेजोल्यूशन बता रहा हूं, जो टिप्स बता रहा हूं, ये चीजें स्टार्ट करने के लिए। ईट हेल्दी फूड यानी आपने सही खाना खाना स्टार्ट करना है। जंक फूड छोड़ दो, उस फूड को छोड़ दो जिससे आपको नुकसान पहुंचता है। कैफीन वाला फूड छोड़ दो, अल्कोहल वाला फूड छोड़ दो और हलाल खाना खाना शुरू करो। हलाल तो सभी खाते होंगे, हलाल इन द सेंस सिर्फ मुर्गा कटा हुआ हलाल नहीं, एवरीथिंग हलाल, जो कि हलाल कमाई से खाया हुआ खाना वो भी हलाल है। अब अगर हराम कमाई से हलाल मुर्गा भी काटोगे वो भी हराम होगा, लेकिन हलाल कमाई से हलाल चीजें हलाल रहती हैं। तो ये चीज है कि हलाल खाना खाना स्टार्ट करो, हेल्दी खाना खाना स्टार्ट करो, जिससे आपकी सेहत अच्छी रहे, जिससे आपका चलना बैठना अच्छा रहे, जिससे आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहे, जिससे आपकी फिजिकल ग्रोथ हो, जिससे आपका पर्सनल ग्रोथ अच्छी हो। तो ये चीज आपने स्टार्ट करनी है। और नंबर 7 और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपने ये गोल रखना है कि कम से कम 10 लोगों को मैं अपने जैसा बनाना स्टार्ट करूंगा। अपने जैसा इन द सेंस कि आप वैसे बन चुके होंगे, तो आपने 10 लोगों को एटलीस्ट आपने इस साल आपने गोल रखना है कि 10 लोगों को मैं दीन की दावत दूंगा, उनको नमाज पढ़वाना शुरू करूंगा, ताकीद करूंगा नमाज की। सिर्फ 10 लोगों का गोल रखो। मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं इस चैनल के, अगर 100 लोग भी देखते हैं, 100 लोगों में से 10 लोग भी 10-10 को अगर चेंज करना स्टार्ट करेंगे, 10-10 को आप दावत देना स्टार्ट करोगे, उनको अपने इस ग्रुप में लाने की स्टार्ट करोगे और उनको बोलो कि कुरान सोसाइटी चैनल है यूट्यूब पे, वो ज्वाइन करें और देखें, तो इंशाअल्लाह ताला चेंज आएगा, सब ईमान वाले बनेंगे इंशाअल्लाह। और 10 लोगों को आप एटलीस्ट, एक बंदे का आज़म ये ले लो कि 10 लोगों को आपने दावत देनी है, उनकी ये सारी चीजें, नमाज शुरू करवानी है, बुरे काम छुड़वाने हैं, आपने 10 लोगों को दावत देनी है इस साल दीन की, या आपने इस साल के लिए पूरे कैलेंडर के लिए आपने कॉपी पे ये गोल लिख लेना है। ये काम आएगा भाई, ये काम आएगा। आपको लगता है ये सारी चीजें, इसमें तो हमें पर्सनल कोई फायदा नहीं है, नहीं कोई पैसा मिल रहा है, लेकिन यही काम आएगा और आपको पता है कैसे काम आएगा। और उसके बाद नेक्स्ट है सब्र करना सीखना है। भाई जब आप दावत दोगे तो वहां से आपको गाली भी मिलेगी, जब आप लोगों को बताओगे कि बुरा काम ये है अच्छा काम ये है, तो वहां से आपको गाली भी मिलेगी। तब सब्र भी करना है। कभी कभी लड़ाई भी होती है, कभी कभी कोई गुस्सा भी कर लेता है, तो सब्र करना अपने अंदर आपने सीखना है। सब्र आएगा आपके अंदर और ये सारी चीजें फिर आसान हो जाएंगी करना, और बहुत ही फिर अल्लाह ताला भी साथ देता है। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक मैं सब्र करने वालों के साथ हूं। नेक्स्ट है आपने अपने रिलेशनशिप्स मैनेज करने हैं। ये वो चीज है जिसपे कोई भी गौर व फिक्र नहीं होती है, जिसपे कोई भी गौर नहीं करता है। आप रिश्तेदारों के साथ आपके सलूक कैसे हैं, इन चीजों को आप कंसिडर ही नहीं करते हैं। तो आपने इस साल के इस गोल में आपने 9वीं चीज ये रखनी है कि आपने अपने रिश्तों को मजबूत करना है। आपने अपने रिश्तेदारों के साथ सलूक अच्छा रखना है।
आपके अगर कोई रिलेशनशिप बिगड़ा हुआ है, किसी रिश्तेदार के साथ नहीं बन रही है, घर वालों की हजार चीजें होती हैं, कभी कभी 2-2 फुट जमीन पे भी झगड़े शुरू हो जाते हैं, तो आपका ये फर्ज है, अगर आप बेटे हो या बेटी हो अपने घर के, तो आपका फर्ज है कि उस रिलेशनशिप को मैनेज करने की कोशिश करो, उस रिलेशनशिप को सेटअप करने की कोशिश करो। अगर बिगड़ी हुई बात है तो उसको आपने सेटअप करने की कोशिश करनी है, उसको आपने ठीक करने की कोशिश करनी है। ये है आपकी एक और बात जो मैं आपको बताना चाह रहा था, कि इन चीजों पे, इस चीज पे कोई गौर नहीं करता है कि भाई आपका हमसाये के साथ उठना बैठना कैसा है, आपका अपने रिश्तेदार के साथ उठना बैठना कैसा है। तो इन चीजों को आपने मैनेज करना है। और नंबर 10 है, आपको अर्निंग स्टार्ट करो। लड़का हो लड़की हो, 18 साल से ऊपर हो या 15 साल से या 16 साल से ऊपर हो या 20 साल के हो गए हो, जिस भी एज ग्रुप के हो, अगर अर्निंग कर रहे हो तो दैट्स गुड, बाकी के 9 चीजें फॉलो करो। अगर अर्निंग नहीं कर रहे हो तो इस साल सोचो कि आपने अर्निंग स्टार्ट करनी है। और अर्निंग के लिए आपको कोई टेंशन नहीं है, ऑनलाइन इतनी सारी अर्निंग होती है। कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है वो बिजनेस शुरू करे, लेकिन अल्लाह ताला की खुशनवीदी के साथ। और इन सारी चीजों को करने के लिए अल्लाह ताला की खुशनवीदी जरूरी है, अल्लाह ताला की का राजी होना जरूरी है। तो इन चीजों को स्टार्ट करने के लिए इन चीजों को जरूर फोकस में रखें और इन चीजों को आपने स्टार्ट करना है, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करो। इंशाअल्लाह ताला दुनिया की भी कामयाबी है और आखिरत की भी कामयाबी है। और दुनिया की तो कामयाबी गारंटेड है फिर, और आखिरत की भी तो गारंटेड ही कामयाबी है। इन चीजों को स्टार्ट करो और मेरे लिए भी दुआ करो। तो अल्लाह ताला हमें इन चीजों को फॉलो करने की तौफीक अता फरमाए। अगर मुझसे कोई चीज रह गई हो जो खुद से आप ऐड करना चाहते हो तो उस चीज को ऐड करो, और इन चीजों को रोज देखो कि आप इतना किस में इंप्रूव कितना कर रहे हो। परसेंटेज ग्राफ बनाओ अपने आप का, कि नमाजों का ग्राफ आपका कैसा चल रहा है, आपकी बुरी आदतें खत्म हो रही हैं या नहीं। तो अपना एक ग्राफ रिप्रेजेंटेशन रखा करो रोज का, कि मैं कितना इंप्रूव कर रहा हूं इन चीजों में। और ये चीजें हर एक मुसलमान के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। तो आई होप कि आपको ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लगी होगी। अगर आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो लगी तो कुरान सोसाइटी चैनल आपका अपना चैनल है, आपके भाई का चैनल है। दीन की दावत का काम स्टार्ट किया है, अल्लाह के लिए एक प्लेटफॉर्म जैसा शुरू किया है ताकि हम अच्छी बातें शेयर करें, अच्छी बातें सीखें। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो ये वीडियो, और बाकी जो भी आपको आता है यूट्यूब के वीडियोस के साथ करना, लोगों में फैलाओ। इंस्टाग्राम पे फॉलो करो और